السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے سر. آج بات کرتے ہیں کچھ جو وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے جی اور میرے دوست شہباز گل کو پڑھنے والے انڈے اور سیاہی پر جی اور مریم نواز کی جو ضمانت منسوخیہ کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں. جی تو میرے شروع کرتے ہیں مریم نواز کے کیس سے. سر اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یار یہ دیکھیں نا، جب مریم کے والد محترم میاں نواز شریف نے چند دن پہلے کہا تھا 3 جرنیلوں کے نام لیے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمیش کر دیں گے اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے. یہ بات کی نا انہوں نے. تو اس کے فوراً بعد جناب یہ پٹیشن آ گئی کہ جناب ان کی جو ضمانت ہوئی ہے چودھری شوگر مل میں مریم نواز کی، اس کو کینسل کرے. اور یہ جڑتے تو ہیں نا آپس میں تانے بانے. تو وہ جناب انہوں نے ایک اسپیشل پیراگراف اس میں شامل کیا ہوا ہے کہ جناب مریم نواز جو ہے فوج اور فوجی افسروں کے خلاف کوئی گفتگو کرتی ہے، تحریک چلائی ہوئی ہے، لوگوں میں منفی جو ہے تاثر پیدا کر رہی ہے فوج کے بارے میں اور مس یوز کر رہی ہے اپنی بیل کا. اور آج جب کیس لگا ہے تو عدالت نے پوچھا جناب کیا مس یوز کر رہی ہے ذرا بتائیں. تو وہی ساخ یہ وہ انہوں نے کہا یار جو مس یوز نا اور کوئی گراؤنڈ ہے تو آپ آئے ادھر. تو انہوں نے کہا جناب یہ نہ پیش نہیں ہو رہی مختلف انکوائریاں. اس شوگر مل میں انہوں نے وعدہ کیا تھا پیش ہونے کا، عدالت کا حکم بھی ہے لیکن جی پیش ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک. تو عدالت نے پوچھا بھائی آپ نے آخری دفعہ کب بلایا تھا؟ جی 11 اگست 2019 کو بلایا تھا. ان کا جی بھائی جی پھر وہ بندے لے کے آ گئی تھی، حملہ کر دیا تھا، یہ ہو گیا تھا، الگ پرچہ درج کر دیا ان کے خلاف. بالکل 300 بندوں کے خلاف پرچہ ہوا تھا نا، کوئی بندہ چھوڑا نہیں تھا. کونسلر لاہور کے سارے اس میں تھے نا. بالکل. عدالت نے کہا جناب پھر آپ 6 مہینے تک سوئے رہے ہیں تو آپ نے اس بیچ میں کیوں نہیں یہ کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اگست 2020 انہوں نے کہا. جی ٹھیک ہے نا. میں نے شاید 20 ہی بولا. جی آپ نے 20 بولا. ٹھیک ہے نا. تو پھر جناب عدالت نے کہا کہ جناب اگر یہ کر رہی ہے مس یوز تو آپ کیوں سوئے ہوئے تھے، یہ بات انہوں نے کی. اور پھر ان کا جو اور کوئی گراؤنڈ ہے تو بتائیں. انہوں نے کہا جناب ان کی جو ہے ضمانت معطل کر دیں فٹافٹ. ٹھیک. سی ایم ڈالی ہوئی تھی. ان کا یہ سی ایم پہ تو جلدی فیصلہ نہیں ہوتا، عدالت کو بھی جلدی نہیں ہے اس میں لگ رہا ہے مجھے. مسٹر جسٹس سردار سرفراز ٹوگر اور مسٹر جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب جو ہیں ڈی بی، ان کی یہ کیس سن رہی ہے. ٹھیک. تو بھائی جی انہوں نے 7 اپریل کی ڈیٹ ڈالی ہے. ان کا جو معطل کرنے والی ہے اس پہ بھی ذرا ان کا موقف سنیں گے. تو کوئی گروہ جو آج عدالت میں وہ خاص بیان کر نہیں سکے. اس کو نا کیس کس حد تک نیب کا مضبوط ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا میاں نواز شریف نے جو بیان دیا، اس کے بعد نیب کا فوراً متحرک ہو جانا اور وہی گراؤنڈ لینا کہ جناب فوج والی فوج کی ساکھ خراب کر رہی ہے یہ وہ. تو اس سے تو اپنی جو نیب کی اپنی ساکھ ہے اس پہ پہلے بھی ایک سوال کا نشان تھا، وہ اور بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یہ فوج کے خلاف اگر کوئی بندہ فرضہ سرائی کرتا ہے جی تو ایک الگ قانون ہے. ٹھیک. اس قانون کے تحت پرچہ درج کرے بھائی. ٹھیک ہے نا. بالکل. وہ بڑے محتاط لینگویج استعمال کرتی ہے بھی، وہ اتنی جلدی پکڑ میں آنے والی نہیں ہے. بالکل. اس پرچے میں اب اس کو دیکھنا پڑے گا کیس ہے کیا دراصل. چودھری شوگر ملز کیس. جی. وہ ان کے کزن تھے عباس شریف کے بیٹے، وہ بھی پکڑے گئے، یہ بھی خاتون بھی پکڑی گئی. اچھا. تو نواز شریف صاحب بھی اس میں ہیں. کیس یہ ہے کہ کوئی مشکوک تفصیلات زر ہیں، مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور 3 غیر ملکی ہیں دبئی کے. ٹھیک. سمتھنگ بن سمتھنگ بن سمتھنگ. انہوں نے 400 ملین روپے بات کر ڈالر میں روپے کا یہ تفصیلات کی ہیں اور چودھری شوگر مل کے ساتھ. اچھا. اس میں ایک ہے ناصر عبداللہ حسین لوتھا صاحب. اچھا. وہ سمٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہوتے تھے. یہ بھی دبئی کے بندے ہیں. ٹھیک. اصل میں یہ دبئی کے شہری ہیں. ان کی ایک ٹی ٹی ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر جس کو کہتے ہیں، $4.8 ملین. اچھا. ملین ڈالر. بالکل. تو یہ ٹوٹل الزام ہے کہ جناب یہ ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، ہم نے ذرا انکوائری کرنی ہے. عدالت نے پوچھا بھائی جی اب آپ کہتے ہیں کہ پیش نہیں ہو رہی، یہ جسمانی ریمانڈ میں پر آپ کے پاس رہی ہے نا نیب کے پاس، یہ
اگست 2019 8 اگست 2019 کو گرفتار ہوئی تھی، جیل میں اپنے ابا جی کو ملنے گئی ہوئی تھی، تو وہاں سے پکڑ کے لے گئے تھے ان کے والد صاحب کے سامنے، بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ تو پھر ان کی 4 نومبر 2019 کو بیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے عدالت میں یہ کہا تھا، ان کو جب جسمانی ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا جناب اب تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، اب مزید تفتیش درکار نہیں، ہم نے کر لی تفتیش۔ عدالت نے پوچھا بھائی جی اگر آپ نے تفتیش کر لی ہوئی ہے ہاں جی تو اب آپ کو، انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے، یہ تو وہ دے نہیں رہی، روایتی سا جواب دے دیا ہوا ہے۔ ہاں جی یعنی جواب دیا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ جواب نہیں دے رہی، جواب دیا لیکن وہ روایتی سا جواب ہے، آپ کے سوال بھی تو روایتی سے ہوتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو بیل کی بات کر رہا ہوں نا، وہ جو 4 نومبر 2019 کو ان کی بیل ہوئی تھی جوہری شوگر مل میں، جس کو میں نے کہا کہ یہ ٹی ٹیز کی بات ہے، مشکوک ٹرانزیکشنز کی بات ہے، وہ تھا مسٹر جسٹس علی باقر نقوی اور مسٹر جسٹس سردار احمد نعیم پر مقتول ڈویژن بینچ، ٹھیک۔ اس میں انہوں نے اس کے ذمے جو نکلتا تھا نا، مریم کے ذمہ جو رقم نکلتی تھی ٹوٹل وہ بنتی تھی 7 کروڑ روپے، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے سی او کی حیثیت سے بینک سے یہ رقم نکلوائی تھی مریم نواز نے، ٹھیک۔ عدالت نے کہا اس بیل اپلیکیشن میں کہ جناب جو بی بی ہیں وہ سی او تھی شوگر مل کی، چودھری شوگر مل کی، اور چودھری شوگر مل کوئی ناد دہندہ نہیں تھی کسی بینک کی، کچھ اسٹے بھی نہیں تھا، ٹھیک۔ اس نے اگر نکالی ہے رقم 7 کروڑ کی تو اس نے کیا جرم کیا؟ بالکل اس کا پیسہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، اس نے کہا پھر وہ مشکوک ٹرانزیکشن کی طرف چلے گئے نا، بات کر لے گئے نا نیب والے جی، انہوں نے کہا جی یہ بی بی اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے، یہ بات آپ کو میں یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے جو 7 کروڑ روپے کا الزام ہے اس کے اوپر، وہ ڈپٹی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے پاس نقدی کی شکل میں جمع کروائے۔ اچھا، جو اس پہ الزام ہے 7 کروڑ کا، وہ تو 7 کروڑ وہ پہلے ہی ضمانت کے طور پہ جمع کروا چکی ہے، اب کیا نکال لیں اس سے؟ 7 کروڑ کا الزام ہے، 7 کروڑ سے نہیں جمع کروا دیے ہوئے، اگر اصل مسئلہ تو پیسے ریکور کرنے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب بی بی اگر 7 کروڑ پہلے دے چکی ہے، اگر سزا ہوتی ہے تو ضبط ہو جائیں گے، جرمانے وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، 1-1 کروڑ کے مچلکے ہیں دو، ٹھیک۔ پاسپورٹ اس کا سرنڈر کروایا ہوا ہے، عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس رکھیں، وہ باقی اس نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں ملک سے باہر چلے جائے گی، ملک سے باہر عدالت کی اجازت سے جائے گی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ جو کیس تھا نومبر والا، پچھلی بیل والا، اس میں پہلے انہوں نے بیل کی تھی انسانی، میں نے اپنے ابا جی کی تیمارداری کے لیے جانا، وہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں اس پریئر پہ یا استدعا پہ مریم کے وکلا نے اصرار نہیں کیا، وہ ختم، ٹھیک، ہمدردی والی بات، اور انہوں نے میرٹ پہ دلائل دی ہے، یعنی اس کی بیل میرٹ پہ بنتی تھی، کیس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے، ہار، ٹھیک۔ یہ جیسے عام کیس بنتے ہیں، وہ انہوں نے خود کہا، عباس شریف کا جو بیٹا ہے ان کا کزن، ان کی بھی بیل ہو گئی تھی ان کے 2-4 دن بعد، تو وہ انہوں نے خود فواد چودھری دیگر شیخ رشید، انہوں نے کہا یار وہ تو بیچارہ ابھی پھنس گیا، اصل ملزم تھے نہیں، انہوں نے ابھی پھنساتا ہے انہوں نے، اور بھائی آپ لوگوں نے پھنسایا ہے اس کو، تو اس کیس میں جان شان ہے کوئی نہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ اب عدالتیں جو ہیں یار، انہوں نے نا جتنا بھی پریشر ہو عدالتوں پہ، وہ آگے جا کے میں آپ کو بیان کروں گا کیسے ہوتا ہے۔ عدالتوں نے اپنی عزت بھی دیکھنی ہوتی ہے، اپنی تکریم بھی دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ کہیں سے فون آ رہے ہیں یا بندے آ کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ جناب بیل کینسل ہو جائے گا، عدالت نے کوئی دکھانا ہوتا نا کام، بالکل، تو وہ 7 اپریل کی لمبی ڈیٹ نہ دیتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو وہ چل رہے معاملے، ہاں وہ ناصر عبداللہ حسین لوتھا صاحب کی بات ہے، یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے اس میں، اچھا، لوتھا صاحب کی یہ ایک سٹائل ہے، وعدہ معاف گواہ بن گئے، مجسٹریٹ کے سامنے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ان کا جو بیان ہوا وہ ضروری ہوتا ہے کہ ملزم وہاں موجود ہو، مریم وہاں موجود ہی نہیں تھی، اس کے بیان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے لوتھا کے بیان کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ لوتھا صاحب وہی ہیں جو مشکوک کھاتوں کا کہتے ہیں نا بینک، اسول زرداری اور ان کی بہن اور ان کے خلاف جو ہے
उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला हुसैन, नासिर अब्दुल्ला हुसैन लोथा साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह नहीं हुए। ये सारा कुछ मशकूक है यार। एक ही बंदा है, वो मुल्ज़म भी है ये, लोथा साहब खुद मुल्ज़म भी है और वादा माफ गवाह भी है। और वादा माफ गवाह जो है वो वादा माफ गवाह उस वक्त बनाया जाता है जब उनके पास शहादत ना हो। इसका मतलब इनके पास शहादत कोई नहीं। लोथा का एक बयान है और हाई कोर्ट ये कह चुके हैं लोथा के उस बयान की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि मरियम की अदम मौजूदगी में हुआ है, मुल्ज़मों की अदम मौजूदगी में वो बयान है। वो कानून ये कहता है कि वहाँ मुल्ज़म का मौजूद होना ज़रूरी है ताकि उसको तरदीद कर सके या उस पर जिरा कर सके या उसको कह सके भैया ये तो बकवास कर रहा है। तो सर जैसे आपने बात की ना कि मरियम वो नैब ने ग्राउंड बनाई कि ये इदारों के खिलाफ फर्जंदारी करती है, लेकिन आज भी मरियम से पूछा गया ये स्मैश वाली बात, तो मरियम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। यार वो देखे ना, आप मरियम की बात समझने की कोशिश करें। वो ये नहीं कि वो नाम लेने से डरती है, उसने कहा मैं डरती नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नाम ले लेते हैं, उसके बाद जब नाम लेते हैं तो टीवी चैनल उसको दिखा नहीं सकते, नहीं दिखाते। मौलाना फजल रहमान ने लाहौर वाले जलसे में जब नाम लिया था एक जर्नैल का, तो वो टूं 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 आ गई थी टीवी चैनल्स में, ठीक है ना। वो भी नाम वो 5 सेकंड 7 सेकंड के बल्कि वो डिले के साथ इनके तकरीरें चलाते हैं। मरियम अगर नाम लेगी उनका मलिक साहब का, फैज साहब का और बाजवा साहब का, तो टीवी चैनल्स दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक पैमरा ने पाबंदी लगा दी नवाज शरीफ पे, इसकी एक तकरीर ऐसी हो गई नामों वाली, ठीक है ना। अब तो गोलमोल बात होती है ना, बिल्कुल। तो अब तो शो भी मच जाएगा, अदालतें भी हैं, तो क्या टीवी चैनल जो है इस पे पाबंदी लग जाएगी बीबी पे कि जनाब ये भी जर्नैलों के नाम लेती है। बीबी बड़ी समझदारी के साथ ये गेम कर रही है कि वो बात कह भी जाती है, अपने अब्बा जी की बात का हवाला देती है, लोग सोशल मीडिया पर देख लेते हैं कि अब्बा जी ने क्या कहा था। और यहाँ वो नाम इसलिए नहीं लेती कि एक अवाम तक राब्ते का जो जरिया है वो तो टीवी चैनल्स ही है ना, वो एक राब्ते का जरिया या सोर्स जो है उसको क्यों ख़त्म करे, वो क्यों नाम ले। जब ज़रूरत होगी तो वो ले देंगी नाम, लेकर जब उनके अब तो मीडिया इतना कमज़ोर है ना, हाँ जी, मीडिया इस काबिल ही नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक फ़ोन आता है, एक रन डाउन खबरों का वो बनवाते हैं यार, वो बनवाते हैं। अरे हकीकत है इसमें कुछ, ठीक है ना। फलां का नाम लेना, फलां का नहीं लेना, तस्वीर फलां की जाएगी, एक दफ़ा वो उसकी तस्वीर आ गई गलानी की, हाँ जी, तो वो चाय पी रहे थे, कप उनके हाथ में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामने खड़े हुए हैं, हाँ। वो तस्वीर हमारे अखबार में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद एक डायरेक्शन आ गई कि जनाब की तस्वीर ही लगेगी, एक नई तस्वीर भेजेगी, तस्वीर वही कप डिलीट कर दी। यानी वो कप पकड़ के वो चाय पी रहे हैं और सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा है, तो लग ये रहा है कि बास और मुताहत की बात है, बास चाय पी रहा और मुताहत, और जब वो कप गायब हो गया तो लग रहा तो बराबर की सतह के बंदे कर रहे। इस हद तक भाई मीडिया पे कंट्रोल है उन लोगों का। ठीक हो गया। सर ये शहबाज गिल साहब के साथ क्या हो गया यार? शहबाज गिल साहब जो है ना, ये बड़े जो है ना कह लें आप जट आदमी हैं, गिल हैं, बिल्कुल। उन्होंने आज बताया है कि मैं इस्माइल गिल का पोता हूँ, दादे का जिक्र किया और ऊपर यार मैंने कहा था दादे का जिक्र किया, अब्बा जी का जिक्र नहीं किया। वैसे तो सारे वो लिखे ही हैं, ये अब्बा साहब का एक ही है, लेकिन उन्होंने अपना ख़ानदान नहीं वो नहीं बताया ना। वो बताया कि 32,000 हमारे गिल जो हैं मेरे हल्के के वोट हैं, राई चट्टे जुट्ठे नहीं मैं शामिल कर रहा हूँ उनमें, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर वो राइयों ने घंटा लगा दिया उनका। अच्छा, वो मैं बताता हूँ कैसे आगे जाकर मैं बताता हूँ कि राइयों ने कैसे घंटा लगाया उनको। तो वो जनाब भाई साहब वो आए हाई कोर्ट, तो बाहर अंडे छंडे पड़े उनको, वो उनके साथ काफ़ी बढ़ थी, बिल्कुल, ठीक है ना। वो बदमाश लेके आए हुए थे, तो मैं बताता हूँ कैसे लेके आए बदमाश। तो जनाब वो उन्होंने फिर बाद में धमके चमके भी दिए। वो ये है कि वो खुद उन्होंने कहा कि मुझे जियो दुनिया और एक टीवी और चैनल का नाम लिया कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके उनके सीनियर साफियों ने बताया कि जनाब यहाँ आपको अंडे छंडे पड़ेंगे। तो मैंने कहा जी मैं तो डरने वाला नहीं, मैं ऐसे पहुँच रहा हूँ। वो अपने साथ 100-150 बदमाश लेके आए हुए थे, ठीक है ना। वो इलाके बंदे ना अपने साथ लेके आए थे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि आज फिर घंटा लगाना है तो लगाने। बाहर कोई उन्होंने मारे अंडे छंडे तो वो तो बच गए, बिल्कुल लगाने। फिर अंदर आए तो वो जा रहे थे अदालत की तरफ, वो बरामदे में से, तो वहाँ
एक साहब ने सही स्याही फेंक दी, वहाँ लड़ाई हो गई। तो लड़ाई में फिर वो जो बंदा था जिसने वो किया था, वो मैंने कहा ना अराइयों ने घंटा लगाया, ठीक है ना, वो गुलाम अब्बास उनका नाम है बंदे का, और वो जख्मी हुआ है, और मियाँ गुलाम फरीद कौम अराई, ठीक है, उन्होंने स्याही फेंक के। ये मॉडल कॉलोनी फिरदौस मार्केट गुलबर्ग 3 में रहने वाले कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक। और जो दूसरे अंडे शंडे मारने वाले थे उनमें मोहम्मद अतीक रहमान है, वो चौधरी मोहम्मद शफीक के साहबजादे हैं, और माल रोड रीगल प्लाजा सेंटर में इनका मोबाइल की दुकान, ठीक है, मोबाइल फोन्स की, और निस्बत रोड के रहने वाले हैं, ओके। और तीसरे जो हैं वो गिल साहब के बरादरी वाले थे, अच्छा, जट बरादरी थे, और तारक जुनैद उनका नाम है, जुनैद, और वो फतेहगढ़ के रहने वाले हैं, और गुलाम मुर्तज़ा जट के वो साहबजादे हैं, और वो जिम्मेदार करते हैं थोड़ा बहुत। ये तीनों जो है ना ये वर्कर हैं नून लीग के, ठीक है ना, जज्बाती किस्म के। इनमें जो गुलाम अब्बास है वो तो हर पेशी पे मैंने देखा है हाई कोर्ट में बेचारा आया होता है, अच्छा, और नारे शारे लगा रहा होता है। तो आज फिर थोड़ा जज्बाती होकर उसने जो काम डालना था वो डाल दिया, और बाद में ठीक है जो कि मारते रहे शहबाज गिल साहब। अब शहबाज गिल साहब जो है ना ये थोड़ा सा ना इनका जो रवैया है, कहते जट हैं हम, एक तो ये तसब की बात है, बिल्कुल, ठीक है, बाकी कौमें क्या है, ठीक है ना, जिनको कहा कि वो मेरे हल्के में वो भी वोट है लेकिन मैं गिन नहीं रहा, उनको उन वोटों ने फिर ठंडा लगाया ना, उन्होंने बताया फिर बताया ना। अच्छा, ये ताहर मुबीन है ऑपरेशंस मैनेजर ऑपरेशंस अलबराक के, अच्छा, ये जो मैनेजर चलती थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इन्होंने शहबाज गिल ने उनके खिलाफ कोई अलबराक के खिलाफ कहा था जाली बनाया हुआ, इन्होंने मादा गलत ये वो कैंसिल कर दिया ना उन्होंने। अब तो उसने इनको हर जाने का दावा किया 1 अरब का, ठीक है। शहबाज गिल साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बदमाशी करके कहा कि जनाब ये तो उनका नुमाइंदा नहीं, जाली डॉक्यूमेंट्स बना के इसने ये मेरे खिलाफ दावा किया हो, और सलामपुर थाने में उसको पकड़वा दिया। अब ये जो बंदे हैं अगर उस ताहर मुबीन के साथ जो तुर्की की एक कंपनी का मैनेजर ऑपरेशन है पाकिस्तान में जी, उसके साथ ये इतनी जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, हाँ जी, तो ये जो बच्चे पकड़े हैं, ठीक है ना, जो मैंने जिनका नाम लिया है अतीक, तारक और गुलाम अब्बास, ये तो फिर इनके लिए वो है कोई नहीं। अब लीग को जरा तगड़ा होना चाहिए उनको। अब कारकुन पकड़े गए हैं तो उनके पीछे तो खड़े हो ना, बिल्कुल, और वो खड़े होंगे मेरा ख्याल है। तो ये सारा ये ना यार पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये जो हुआ ना किसी पे स्याही फेंकने वाला मामला 1998 मेरे ख्याल दिसंबर के रहा नवाज अब्बासी साहब की अदालत थी पिंडी में, तो वहाँ जो नैब का गवाह था ना उनके खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जी, उसके मुंह पे स्याही फेंक दी थी नहीद खान ने, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी। फिर उनके खिलाफ पर्चा हो गया, बाकी आ गई लाहौर। अब लाहौर में जस्टिस रमदे की अदालत में केस लग गया उनका। रमदे साहब जो थे उनके भाई अटॉर्नी जनरल थे चौधरी फारूक, नून लीग में, नून लीग की हुकूमत। अब सारी दुनिया कह रही है यार ये तो नहीं छोड़ेगा, ये तो बेल नहीं लेगा। वो सुबह ना अभी पीएन भी नहीं आए थे, वो छुप छुपा के वो बेचारी आ गई थी 8 बजे से बहुत पहले, अच्छा, तो बाहर बैठी रही है। तो यूं ही अदालत में आई तो पता चला जनाब वो है। अब जब उनकी बेल होगी ना तो मैंने रमदे साहब से पूछा, तो मैंने कहा सर वो बाहर से बड़ी धुमची कि तुसी नून लीग के तुरे भाई ने तो तुसी उनका यार मुझे ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक फ़ोन आया था सुबह सुबह, अच्छा, मैं शेव कर रहा था, मुझे फ़ोन आया बहुत बड़े अफसर का, मेरा दोस्त भी है, ठीक है। उन्होंने कहा जी मेहमान हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, अच्छा, जरा जल्दी फारग कर देना। यानी मतलब ये है कि कहना वो उनको पता था हाँ, कि नहीद खान फजर के बाद ही पहुंच गई है, उनकी मुखबरी पूरी थी, बिल्कुल, और मेहमान फारग कर दें यानी जल्दी जल्दी बेल खारिज करो तो पढ़ना है ना, अच्छा। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि जो अदलिया का वकार अगर आम बंदा होता, बिल्कुल, और हुकूमत के साथ पढ़ाना होता, हाँ जी, तो शायद मैं बेल, क्योंकि सवाबदीदी इख्तियार है हाँ अदालत का, तो शायद बेल ना लेता। लेकिन यहाँ इशू बन गया था अदालत की इज्जत वकार और तकरीम का, हाँ, कि अगर मैं बेल खारिज कर देता जी, नहीद खान की बेल ना लेता
गिरफ्तार करवा देता तो वो अदलिया के मुंह पे कालक मली जानी, वो जो नहीं खाने मली थी ना गवाह पे, वो अदलिया के मुंह पे मली जानी थी कि यार देखो जज को मन मिलो पराठ आने की जरूरत है, आप बिल खारिज करती। ये जो मैंने बात की ना पहले, मैं अभी बताता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो जज से मान है, ये इनको अपनी इज्जत भी और अदलिया की इज्जत भी बड़ी, और तकद्दस और तकरीम बड़ा अजीज होता है। फिर वो कसूरी साहब थे, अहमद रजा कसूरी, उनके मुंह में सुप्रीम कोर्ट में स्प्रे करते थे किसी ने, वो काले रंग मुशर्रफ दौर के, ठीक है ना, वो मुशर्रफ के बड़े करीब थे ना। जब ये दीवार के साथ लगा देते ना अपोजिशन को, वो कहते हैं ना, शेख सादी का फरमान है, कायत है कि क्या तूने वो मखलूक बिल्ली नहीं देखी जो चीते की आंखें निकाल लेती है। जब बिल्ली घेरे में आ जाती है ना, चीता भी हो आगे, तो वो पंजा मारती है, आंख निकाल देती है। इनको आप घेरे में डाल रहे हैं, ठीक है ना। वो आप मरियम औरंगजेब के साथ क्या किया, ठीक है ना, ठुड्डे मारे, ऐसे इकबाल को जूता मारा, ठीक है ना, जूता लगा, ये जूता वैसे पहले लगा, ठीक है ना। और उनको वो मुसद्दिक मलिक और शाहिद खान अब्बासी सारे, ठीक है ना, उन्होंने अगर ये बदला पूरा लिया, वो मर्दाना वार लड़े वहाँ पे, बल्कि मरियम औरंगजेब भी मर्दाना वार ही लड़े थे। तो ये नवाज शरीफ के भी जामिया अशरफिया और जामिया नईमिया में, ठीक है ना, स्टूडेंट ने जूता मार दिया जनाब के, वो मुमताज़ कादरी जो शहीद, उनको फांसी आपकी, वो फांसी तो आसिफ सईद खोसा साहब की वजह से हुई थी। आसिफ सईद खोसा ने जो सुलह वाली इत्तेफाक थी वो ख़त्म कर, उसमें दहशतगर्दी की दफात डाल दी ताकि सुलह ना हो सके, ठीक है ना, प्रेशर ही ना होगी। और फिर ख्वाजा आसफ पे भी सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन पे हुआ था, वो तो शेख रशीद और परवेज रशीद पर भी जूते जाते तो पढ़ते रहे, वैसे गाना बढ़िया कड़ी उन्होंने से बात के लिए आज, ओ सर बढ़िया। और मार्च 2018 में जो आपके इमरान खान है गुजरात में जलसा कर, इन पे भी जूता फेंका गया था, वो अलीम खां पे लग गया था, जैसे वो एहसन इकबाल वाला जूता किसी और को लग गया था, ठीक है ना, ऐसे ही वो वाला किसी और को लग गया था। अब वो जो गालियाँ दी हैं वो खतून है इनकी, क्या नाम है उसका, फरजाना साबिक MP है, फरजाना भट्ट, उन्होंने बड़ी गाला कटी, ठीक है ना, उन्हें जितने जितने भेज देंगे। और चौधरी तनवीर साहब ने भी जुत्ती मारी है, गाल कटी बड़ी टका के मोटी, ठीक है ना। तो वो इसलिए तो अब्बा जी का नाम नहीं बताते कि वो अब्बा जी तक ना पहुंच जाए लोग। सर वो अब्बा जी का नाम जिक्र करें, फिर मैंने आपसे पूछ लेना, फिर आपको बताना पड़ेगा, फिर बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए आखिरी बात ये कि ये इन्होंने क्या हरकत कर दी, इलेक्शन कमीशन पूरा मुस्ताफ़ी हो, ये मुतालबा क्यों? यार ये जो है ना, जब भी इनको कोई खतरा होता है ना, ये कहते हैं न्यूट्रल एम्पायर। हाँ जी, नहीं है इनके ख्याल में न्यूट्रल एम्पायर वो है जिसका वो जलसों में 2014 में जिक्र किया करते थे कि एम्पायर उंगली खड़ा करने लगा। एम्पायर अब सारी दुनिया को पता लग गया कौन है। बिल्कुल, बाद में कहा मैंने तो अल्लाह को कहा था, यार झूठ की बात होती है, सारी दुनिया को पता था। जब एम्पायर ने बुलाया इनको, कादरी साहब को, इनको कैसे खुश खुश जा रहे थे, बिल्कुल, ठीक है ना। ये एम्पायर को मिला के साथ खेलने की आती है। हाँ जी, वो हमने पहले भी जिक्र किया था, वो हमारे फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब थे, बड़े अपराइट आदमी थे, बड़ी बगले में जाएंगी जब वो आए थे इलेक्शन करवाया उन्होंने 2013 का। तो ये जनाब इन्होंने कहा कि बाद में जब कहा 4 हल्के खोल होते हो उसके खिलाफ हो गए और रिजाइन देकर घर चले गए। वो तो आदत थी जिसे मरा जाए हो गया, इल्ज़ाम आया तो गया। हाँ जी। अब ये जो राजा सिकंदर साहब हैं, सिकंदर सुल्तान साहब, ये भाई किन्होंने इनको नामजद किया था? आइन ये कहता है कि अपोजिशन लीडर और कायदे-ए-अमान यानी वज़ीर आज़म की मुशावरत से, ठीक है ना, होगा उसका तकर्रर और एक पार्लिमानी कमेटी में नाम जाएगा, वो भेजेंगे। अगर दोनों में इख्तलाफ हो तो दोनों 3-3 नाम भेज देंगे। बिल्कुल, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी उनमें से एक नाम फाइनल कर लेगी। ये तो भाई नामजद ही इनका किया हुआ है, ठीक है ना। वो और अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ मेरे ख्याल, 1.5 साल पहले आए हैं, ठीक है ना, 1.25 साल हुआ है। और इसके अलावा 2 बंदे और नए आए हुए हैं, शाह मोहम्मद जतोई और निसार अहमद दुरानी, सिंध और बलोचिस्तान से, जो पंजाब और KP के से हैं, अरशाद कैसर साहबा जस्टिस साहब और अल्ताफ़ इब्राहिम क्रैशी साहब पंजाब से। ये तो अभी 24-25 जुलाई को वैसे फारग होने वाले हैं।
तो ये किससे इस्तीफा मांग रहे हैं? अगले 2 वो बंदे इस्तीफा लगाने हाँ, इस्तीफा नहीं, अगले 2 बंदे फिर वही वो मुशावरा। हाँ जी ठीक है, लेकिन अगर भाई उन्होंने कोई क्यों इस्तीफा दे, मिसकंडक्ट किया हो जी फिर होता है, यानी या तो जहनी और जिस्मानी तौर पे बंदा माजूर हो जाए बिल्कुल कि अपने फ़राइज़ अंजाम ना दे सके, जी एक वजह हो सकती है, उसके खिलाफ रेफरेंस जा सकता है, जनाब ये तो पागल हो गया या जिस्मानी तौर पे फिट नहीं है बिल्कुल या फिर वो मिसकंडक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो, बिल्कुल आइन और कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी कर रहा हो अगर, तो फिर या वाज़ेह जानबदारी दिखा रहा हो, बिल्कुल फिर आर्टिकल 215 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गया था, भाई मेरे अगर आपके पास सबूत हैं तो आप रेफरेंस भेजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? सर ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, जो कमर जमा थे नैब के हाँ चेयरमैन, जी। उनके खिलाफ भी रेफरेंस लेके चले गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उनका भाई जी किधर, ये साडा काम है, हाँ वो अमलन उसका इख्तियार ही नहीं था ठीक वो उसको अच्छा। हटाना। वो तासर ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद जाएगा, लेकिन वो नहीं है, वो फिर किसी वक्त बात ठीक करेंगे। है इनका तो इख्तियार है, वाज़ेह तौर पर लिखो सुप्रीम जुडिशल में जाए मामला, जी तो वो भेजते। फिर असल मसला ये है कि वो अब खौफज़दा ये हो गए हैं कि इन्होंने अपनी दूरियाँ शोरियाँ लाई हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से हीलों बहानों से जो भी किया है, कोशिश की है कि इन बंदों को दबाएं। वो मैंने बताया कि 2 बंदे तो वैसे जा रहे हैं, उन्होंने तो बाहर ही कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, उन्होंने गड़ रहना, हाँ ठीक है ना। और ये जो हैं सिकंदर साहब, इनके बारे में ये है कि ये मुझे राइट है, ये वो शेख रशीद ने भी कहा इन्होंने छोड़ो यार, गड़बड़ करेगा, बिल्कुल गड़बड़ क्या करनी है, आइन और कानून के Upright- मुताबिक चल रहा है ना। बिल्कुल अब वो फॉरेन फंडिंग वाला केस भी कुछ भी हो सकता है, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बराबर इख्तियार है उनको, तौहीन अदालत का तो हाई कोर्ट के बराबर है, लेकिन वो जो पूरी इंतजामिया मुल्क की उनके ताबे होती है, उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट की होती है, बिल्कुल तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये अब ये एक इन्होंने फजा बनाने के, हम तो पहले ही कहते थे कि हम ये कर देना, उन्होंने वो करे, रिपोर्ट आई होनी है ना। बिल्कुल सर, वो इमरान साहब जिस तरह क्रिकेट में करते थे कि अपनी पसंद का काम निभाते, मैं नहीं खेलना, अब वो मामला है कि मेरी पसंद के मामला नहीं थे मैं बस उन्होंने जरा देख लेना ना इन्होंने की हो कर भेजन रेफरेंस यार, गल्ला करने चलो लगे देखते हैं क्या बदनाम, बनता है। उन्होंने देखो ना, उन्होंने बदनाम कर रहे हो, साख साथ खराब तबाह कर रहे हैं। तो फॉरेन फंडिंग वाले केस दा खौफ हो सकता, और बड़े सारे केस ने, हाँ जी एक केस थोड़ा है वहाँ पे किसी में भरे पड़े मामला हाँ, और हर जगह से वीक पॉइंट जो है वो इनके इनके हैं। चलें ठीक है सर, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आप ही कह रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।